अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर एक बार फिर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप का दावा है कि भारत ने आखिरकार टैरिफ घटाने की बात मान ली है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है और कई विशेषज्ञ इसे भारत पर दबाव बनाने की रणनीति मान रहे हैं। Canada, we find that they're charging us over 200% for dairy products. You know about that. And when I left, we had that well taken care of. But under Biden, they just kept raising it. Very difficult to deal with the Canadian representatives. 250% for dairy products, tariff. So where do you hear that? You don't hear that. They have a tremendously high tariff. Give you the exact numbers in a little while coming out on lumber. So they sell us lumber. They have a tremendous tariff. They make it impossible for us to sell lumber or dairy products into Canada, but our numbers are a tiny fraction of that, almost non-existent. And what we're doing is freeing up our forests from the environmental nonsense that they put on them, where you can't cut down a tree. And we have to cut down trees in order to build the firewalls. And those trees are sold, but we're freeing it up on an emergency basis because Canada has been ripping us off for years on tariffs for lumber and for dairy products. 250%, nobody ever talks about that. 250% tariff, which is taking advantage of our farmers, so that's not going to happen anymore. They'll be met with the exact same tariff unless they drop it, and that's what reciprocal means. And we may do it as early as today, or we'll wait till Monday or Tuesday. But that's what we're going to do. We're going to charge the same thing. It's not fair. It never has been fair. And they've treated our farmers badly. Look, our country's been ripped off by everybody, and that stops now. I had it stopped in my first term, and we're going to really stop it now because this has been very unfair. Our country, from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint, has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong. And, you know, if I'm a foreign country, they're going to do fine. But they can't do like they used to do. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया भाषण में कहा कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा रखे थे, लेकिन अब जब उसे बेनकाब कर दिया गया तो उसने इन्हें कम करने का फैसला लिया है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि वे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार भारत से बेहतर व्यापारिक समझौता करवाने में सफल रही है। ट्रंप पहले भी भारत की व्यापारिक नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने अमेरिका के लिए इसे नुकसानदायक बताया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और वे अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत घरेलू मतदाताओं को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अमेरिकी कंपनियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी भारत के आयात शुल्क टैरिफ को लेकर आलोचना की थी और कहा था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक कर लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए एक खुला बाजार प्रदान करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार भारत के ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैरिफ को लेकर शिकायत की थी। वे खास तौर पर भारत द्वारा अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर लगाए गए करों को लेकर नाराज रहे हैं। हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी कंपनियों पर भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर उन्होंने पहले भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी कंपनियों को भारत में उचित व्यापारिक अवसर नहीं मिल रहे हैं, जबकि भारतीय कंपनियां अमेरिका में कम टैरिफ पर अपने उत्पाद बेचती हैं।
भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप यह बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं और दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते अभी भी लंबित हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में वाकई में टैरिफ कम करने का कोई ठोस फैसला लिया है या नहीं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर हमेशा से मतभेद रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को और अधिक खोले और अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने के लिए बेहतर अवसर दे, जबकि भारत अपने स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए टैरिफ और अन्य नीतियां अपनाता है। ट्रंप प्रशासन ने कई बार भारत को टैरिफ किंग कहा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए करों को कम करना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ताएं जारी हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन टैरिफ को लेकर अभी भी कुछ विवाद बाकी है। ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दबाव के कारण भारत ने अपने टैरिफ कम करने पर फैसला किया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ट्रंप के इस बयान को अमेरिकी चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वे अमेरिकी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने भारत जैसे देशों से बेहतर व्यापारिक सौदे हासिल किए हैं और वे अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है और इसका वास्तविकता से ज्यादा लेना देना नहीं है। भारत के लिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी सरकार इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाती है। अगर ट्रंप प्रशासन इस बयान को लेकर कोई आधिकारिक कदम उठाता है तो भारत को इसका उचित जवाब देना होगा। भारत के व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को अपनी रणनीति को स्पष्ट करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उसकी आर्थिक नीतियों में अनावश्यक बदलाव न किए जाए। ट्रंप का यह बयान भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। अगर भारत वाकई टैरिफ कम करने का फैसला लेता है तो यह अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक अवसर खोल सकता है, लेकिन साथ ही यह भारतीय उद्योगों के लिए एक नई चुनौती भी पेश कर सकता है। भारत को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है और अपने व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देते हुए कोई भी निर्णय लेना होगा। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या इस विकास होता है। ट्रंप के इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचते हुए अपने आर्थिक नीतियों को संतुलित बनाए रखना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर XMT न्यूज की नजर बनी रहेगी।